Good evening, students. So we are here with the chapter number 9, Biotechnology, its application and processes. So I'm going to explain this chapter. This is the chapter 9 of the NCRT, class 12 biology. I will be sharing the screen. We will explain that how with the help of biotechnology, a new recombinant DNA is produced. And recombinant DNA is able to make the useful product for the human welfare. What is the definition of biotechnology? That also we will be discussing. Biotechnology is as you know, it is combination of technology and biology. Integration of natural science with the organism, their parts, then thereof, to produce the recombinant, to produce the products to the human service. Let me share you the slide. So in this chapter, we have to understand that how the biotechnology is explained. You can see the slides. I have shared the PowerPoint with you. Biotechnology, the principles and the processes. We are able to understand the process of RDNA technology. We are able to understand the process of our recombinant DNA technology, identify the different restriction enzymes, stages of PCR, define the biotechnology insertional inactivation, describe the working of restriction enzyme. So we have shared the slide with you. We were discussing about the learning outcomes of this chapter, that we will be understanding how the rDNA technology identify करना restriction enzyme को stages of PCR. This also we will study defining the biotechnology and also defining insertion and activation, describing the working of restriction enzyme and bioreactors, applying the gained knowledge, appreciate the role of biotechnology in human progress. Introduction is with the definition. Firstly, the definition, it deals with the techniques. General definition is that it will deal with the technique of using living organisms or enzymes from the organisms to produce products and processes useful to humans. In that sense, it is the making curd, bread, wine, which are all micro-mediated processes. Would also be earlier biotechnology. It is used in restricted sense today because this was the old biotechnology in which this curd, bread, wine is formed. And this was considered old biotechnology. जो पुराने टाइम से हम प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं माइक्रोब से, उसको 1970 से पहले बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता था. It was traditional biotech. But now the modern biotech involves the process of in vitro fertilization, test tube baby synthesizing the gene and using it, developing a DNA
vaccine, and correcting a defective gene. These are considered now the biotechnology. These are the conventional biotech or modern biotech. Now, the European Federation of Biotechnology, EFB, has given the definition that integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs of product and services. So, when the integration of natural science occurs with the organisms, cells, and part thereof, molecular analogs for the products and the services, this is called biotech. Principle of biotechnology, genetic engineering, techniques to alter the chemistry of the genetic material, DNA and RNA, to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक यूज करते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करने के लिए और इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए बस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इससे ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदलता है। केमिकल इंजीनियरिंग में मेंटेन किया जाता है स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग processes to enable the growth of only the desired microbes, eukaryotic cell in the large quantities. तो मेंटेनेंस करना, स्टेराइल कल्चर बनाना, कंटेमिनेशन फ्री, दैट मीन्स which microbe we want to grow, we only grow that microbe in the recombinant microbe only, and then we produce large quantity of product. So this is the type 2 processes, genetic engineering and chemical engineering. Now, Stanley Cohen and Herbert Boyer. You are looking at the image of the two scientists. They were the first one who made the DNA, recombinant DNA, in 1972. They constructed first rDNA. They cut piece of DNA from a plasmid carrying antibiotic resistance, gene in the bacterium Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium के प्लाज्मिड से पहला उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो थी उसको कट कर लिया. दे कट द पीस ऑफ द डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ द एस टाइफिम्यूरियम. दिस वाज द ओरिजिनल organism from which desirable gene was cut and linked it to the plasmid of E. coli. E. coli में उन्होंने उस जीन को ट्रांसफर किया. Plasmid DNA act as vector to transfer the piece of the DNA attached to it. Plasmid DNA को carrier की तरह यूज किया. The rDNA was introduced into the E. coli vector में एस्टाइफिम्यूरियम का डीएनए जोड़कर उन्होंने E. coli में उसको इंट्रोड्यूस किया और नाउ इट कैन रेप्लिकेट इन द E. coli and the enzyme was made for making the multiple copies. अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन E. coli की शो कर पा रही थी. Basic steps in the genetically modifying on organisms. बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं अगर हम कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई नई जीन डालते हैं तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं. यहाँ पे हम 3 बेसिक स्टेप देख पा रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, हमने फॉरेन जीन को आइडेंटिफाई किया. इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट, हमने उसे इंट्रोडक्शन किया होस्ट में. और मेंटेनेंस ऑफ डिजायरेबल जीन एंड इट्स ट्रांसफर टू प्रोजेनी. यहाँ से हम इस ऑर्गेनिज्म से पहले डीएनए कंटेनिंग द डिजायरेबल जीन निकाल रहे हैं. ये फर्स्ट स्टेप है. एंड देन डीएनए हमने निकाल लिया, हमने उसको एंजाइम से कट किया
ये आप देख रहे हो यहाँ पर 2 बार कट लगाया एंजाइम से। अब इस एंजाइम के डीएनए को वेक्टर में ऐड किया। यू कैन सी येलो कलर डीएनए part, circular part is used as vector, that is plasmid is used as vector to carry the purple color enzyme cut desired gene। तो ये वाला पार्ट यहाँ आके इस वेक्टर में जुड़ गया। अब इससे बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ रिकॉम्बिनेंट ये वेक्टर लिया किससे, ये दूसरे बैक्टीरिया से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए वेक्टर ले लिया प्लाज्मिड, और इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके इनको कट प्लाज्मिड मिल गया। इससे इन्होंने दोनों को जोड़ा और नाउ बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस क्रिएटिंग द दिस आरडीएनए बैक्टीरिया में वापस डाल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब बैक्टीरिया लार्ज नंबर में ये जो प्लाज्मिड जो डिजायरेबल जीन है उसकी नई नई कॉपीज बना सकता है और अपने प्रोजेनी बैक्टीरियाज में इजीली इन्हें पास कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी प्रोजेनी बैक्टीरिया बने हैं उनमें ये आरडीएनए चला गया। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना डिजायरेबल जीन का, इंट्रोडक्शन करना होस्ट में, मेंटेनेंस करना डिजायरेबल जीन की, और ट्रांसफर करना प्रोजेनी में। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देयर आर 3 टूल्स: रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरीके की हो सकती हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस दैट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के बीच में कट प्रोड्यूस करती हैं वो सेंटर में। तो इसीलिए इंटरनल कट प्रोड्यूस होने की वजह से, कोई भी सेगमेंट है उसके बीच में कट प्रोड्यूस होने की वजह से उसे एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। और एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए को एंड पॉइंट्स पे बिल्कुल कॉर्नर्स पे कट करती हैं और न्यूक्लियोटाइड एंड से रिमूव होते हैं। Every restriction enzyme identifies different sequences, recognition sequences palindromic होते हैं। Palindromes are the sequence of base pairs that read backwards and forwards same। Restriction enzyme हमेशा इसी तरह के सीक्वेंस पे कट प्रोड्यूस करती है जिसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक यहाँ पर लिख रहा है और ये एक एग्जाम्पल दे रखा है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, G88TC। ये 5' से 3' अगर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड पे पढ़ें तो G88TC होता है, और नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी अगर हम इसे 5' से 3' में भी बैकवर्ड पढ़ें तो भी सेम होता है। ऐसे सीक्वेंस में ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट प्रोड्यूस करती है। नाउ हाउ वी गिव द नेम टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमें नेम देना पड़ेगा, तो हम उन्हें नाम कैसे देते हैं? So there is a nomenclature in which first letter of the name of the enzyme is given from the genus. Second 2 letters are taken from the name of the species in the small letters. For example, Escherichia coli से अगर हमको enzyme निकाल रहे हैं तो it will be called E and CO. E for Escherichia, CO for coli, and R1 is for RY strain, and 1 because of the order in which it is removed. Eco R1 is the R is the derived name of the strain RY13. Roman number indicate the order in which the enzyme was removed. तो रोमन नंबर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, which is indicating the it was the first enzyme of Escherichia coli. इनको R1. And there are many more names are given here for the restriction enzyme. Eco R1 is given, which is removed from the Escherichia coli R strain by 13 bacteria. Now BAM H1 Bacillus amyloliquefans से निकाली गई है। H strain और फर्स्ट एंजाइम है ये।
इसका सीक्वेंस GATCC है। तो इस सीक्वेंस इज अ स्मॉल सीक्वेंस of 5 bases GATTCC. AATTC is the sequence of EcoR1 GAATTC. Hemophilus influenzae. Hint third, its sequence is AAGCTT and cut is produced between AA. Here GAATTC EcoR1 के sequence में cut is produced between G and A. Therefore asterisk is given. Here GGATCC cut is produced between G and G. So is the names are given for of various enzymes of isolated from various bacteria, and their sequence are also given. Now, after understanding about the nomenclature, we should know that restriction enzyme cut the strand of the DNA little away from the center of the palindromic sites, but between the same two bases on the opposite strands. Restriction enzyme cut तो प्रोड्यूस करती हैं डीएनए में थोड़ा सेंटर से अवे, दूर। जैसे कि ये एक सीक्वेंस है GATTC, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो जगह कट प्रोड्यूस करे, G एंड A के बीच में, ऊपर के स्ट्रैंड पे भी और नीचे के स्ट्रैंड पे भी। और a zigzag cut is produced here, which is also called a sticky end. इसकी वजह से जब ये कट प्रोड्यूस होता है, स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड रीजन प्रेजेंट रहते हैं which bind to form a recombinant DNA, जो बाइंड होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाती है। तो यहाँ पर एक बार वेक्टर डीएनए लिया हुआ है, रेड कलर से दिखा रखा है। वेक्टर डीएनए को भी और फॉरेन डीएनए जो ब्लैक से दिखाया है, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, जिसकी वजह से दोनों में सेम, एक अबव ऊपर अपर स्ट्रैंड में G और A के बीच में कट हुआ है, एक नीचे वाले लोअर स्ट्रैंड में। और क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सीक्वेंस क्रिएट हुए हैं, स्टिकी एंड क्रिएट हुए हैं, तो वेक्टर डीएनए ने इधर से रेड वाले स्ट्रैंड ने और फॉरेन डीएनए ब्लैक वाले स्ट्रैंड ने आपस में पेयरिंग करके एक आरडीएनए बना लिया। दे आर अटैच टू ईच अदर। The role of restriction enzyme. A restriction enzyme cut the red arrows. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने रेड एरोस पे कट कर रखा है, जहां पर हम यहाँ देखते हैं साइड में GATTC, तो रिकॉग्निशन साइट दिखा रखी है। तो दो जगह अगर ऐसी सेम साइट है, दोनों से इस टुकड़े को ही अलग करने के काम आ गए। दोनों से बीच में से ये पर्पल कलर का पार्ट सेपरेट हो गया, और डीएनए फ्रॉम अनदर सोर्स जो कि लाइट पिंकिश कलर का सीक्वेंस है, उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, तो उसमें भी स्टिकी एंड क्रिएट हुए और वो दोनों पेयर्स आपस में जुड़ गए। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। स्टेप बाय स्टेप इज गिवन।
Restriction enzyme cut red arrows, double-stranded DNA at a particular recognition site in the blue, given in the blue. Recognition site blue में दिखा रखी है, रेड एरो कट लिखा हुआ है उसके ऊपर, वहां पे कट करते हुए दिखा रखा है. These cut produce a DNA fragment with two sticky ends. दोनों एंड्स पे दो स्टिकी एंड दिख रहे हैं आपको. DNA from another source, दूसरे सोर्स से कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हुआ. एंड पिंक वाला जो पार्ट है प्लाज्मिड का, जो पिंक कलर से दिखा रखा है, उसमें भी सेम एंड पॉइंट पे स्टिकी एंड बन रहे हैं, तो दोनों अटैच हो गए. जॉइंट फ्रेगमेंट विच यूजुअली फॉर्म ईदर लीनियर मॉलिक्यूलर और सर्कुलर वन. जॉइंट फ्रेगमेंट जुड़कर एक सर्कुलर पार्ट बना लेंगे. एंजाइम लाइगेज लगेगी, they can make a linear join or circular part. Now gel electrophoresis, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस करा लेंगे, हमारे पास फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे डीएनए के, तो हम उन्हें सेपरेट भी करेंगे ताकि हम अपनी डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स ले सके. So fragment obtained after the cutting with the restriction enzyme are separated by using gel electrophoresis. उसको लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमें मैट्रिक्स पे और एग्रोस जेल में नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट को एनोड की तरफ मूव कराना होता है. डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं हम स्टेनिंग से. हम इसमें एक डाई यूज करते हैं जिसे इथीडियम ब्रोमाइड कहते हैं. एंड इसको जब हम यूवी में एक्सपोज करते हैं तो हम उससे सेपरेट कर सकते हैं. ऑरेंज दिखता है फिर हमें ये ऑन एक्सपोजर टू यूवी. color it produces, the fragment produces is the orange color, and elution can be done, separation and extraction of the DNA bands from the gel. Gel से अलग कर सकते हैं हम fragments को. What is insertional inactivation? Cloning sites, gene cloning site हमारी plasmid में बहुत सारी present है. ये एक plasmid का डायग्राम दिखा है PBR322. तो PBR322 में हमारे पास दो रीजन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जो हमारी सिलेक्टेबल मार्कर जीन है. इनके अंदर हमारे पास तो दो दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है. तो अगर हम BAMH1 को यूज करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा. और अगर हम PST1 यूज करते हैं, PBR322 इज क्लीव्ड फॉर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एलिमेंट, तो वहां पर कट प्रोड्यूस हो जाएगा. PST1 यूज करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन लॉस्ट हो जाएगा और एक प्लाज्मिड बन जाएगा. प्लाज्मिड में हमने फॉरेन जीन्स ऐड कर दी, और फॉरेन जीन ऐड करने पर हमारा अभी भी स्टिल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का रीजन सेफ है. बस एम्पिसिलिन पोर्शन में, ऑरेंज कलर के पोर्शन में हम फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए ऐड कर देंगे. इससे हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन के से सिलेक्ट कर लेंगे. रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. सो क्योंकि यहाँ पर PST1 एंजाइम यूज करी और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के रीजन में हमने फॉरेन जीन को ऐड किया, तो वो इनएक्टिवेट हो गया. इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि फॉरेन जीन ने इंसर्ट होकर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया. These bacteria which will contain this foreign gene insert in the ampicillin resistance region will become inactive and will become sensitive now to the ampicillin, which was previously ampicillin resistant. Now the bacteria containing this foreign gene insert in the ampicillin resistance will become sensitive to antibiotic ampicillin. Cloning vectors. Plasmid and bacteriophages are the commonly used cloning vectors. Both of these have ability to replicate within the bacterial cells.
independent of the chromosomal DNA. So there are two DNA molecules, autonomously replicating molecules like plasmid and bacteriophage. They have ability to replicate in the cells and produce their copies. They act as a carrier for the taking the foreign gene into the host. Cloning vectors. Component of the plasmid cloning vector are the three important component: origin of replication, ORI, selectable marker. The gene helps to select recombinant over the non-recombinant. Cloning sites. These sites refer to the recognition sites for the restriction enzymes such as EcoR1, HIN3, TVU1, BAMH1. So the regions at which the restriction enzyme can cut is called the cloning site. Selectable marker genes are the helping the experiment to select the recombinant cells from the non-recombinant. And ORI is the region where the DNA linked to any ORI region can be made to replicate. Now, what is competent host? Competent host refer to the bacterial cells that have ability to take up the vector containing recombinant DNA. Methods to introduce alien DNA into the different host cells are shown. Chemical treatment and incubation. That is the chemical treatment when the solution of the cells is treated and the containing the DNA also treated with the calcium or magnesium, such dipositive ions, is called the chemical treatment. Micro injection, you can see the lower there is a diagram of micro injection. That one is the holding needle. This is the vacuum holding needle, and here the cell, animal cell is holded by a vacuum created, and from the side a micro needle is injected into the cytoplasm of the cell. This is particularly they are doing the sperm injection in the ovum. This is the ovum cytoplasm of the this is the cytoplasm of the ovum. इसमें एक needle भेजी है और इसमें इससे इन्होंने DNA इंट्रोड्यूस किया है सेल में. माइक्रो इंजेक्शंस आर आल्सो गिवन. केमिकल ट्रीटमेंट में हमने होस्ट सेल को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में ट्रीट किया है कैल्शियम आयन से, उसे इंक्यूबेट किया है, हीट शॉक दिए हैं, बार बार उसे आइस पे रखा है, 42 डिग्री पे रखा है. उससे क्या हुआ है, जो सोल्यूशन में कैल्शियम ट्रीटेड सेल्स है उसमें परमिएबल हो गई है वॉल्स, और जो डीएनए है वो उसके अंदर चला गया है. और जब हम हीट शॉक दे रहे हैं तो डीएनए उसमें चला गया. Here micro injection diagram is also again given. RDNA को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं हम न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स में. Ballistic, this is a gene gun method. High pressure is shown. Helium gas is used for creating the high pressure. And ruptured disc helium blast is given. A micro carrier with micro projectile assembly is there. Stopping screen is there. The gold particles are bombarded on the soybean leaf. Petri dish lid. Inside that a soybean leaf is kept, and then from that here the diagram image is also formed. This is the complete process which is there in the gene gun, and this is the diagram image. This gene gun barrel is there and it is shooting the micro projectile of gold and tungsten coated with the plastic disc of the DNA coated particles. Disc stopped by the screen and the DNA coated particles dropped into the target plant cells and get inserted into the plant cells. Disarmed pathogen, modified type plasmid or retroviruses linked with the DNA, rDNA, allowed to infect the plant or animal cells. तो कोई नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है अगर प्लांट के जैसे कि टाइप्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियंस का टाइप्लाज्मिड और रेट्रोवायरसेस, इनको हम आरडीएनए इनमें पहले ऐड कर देते हैं और फिर इनको इन्फेक्शन करा देते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स को. यहाँ आपको टाइप्लाज्मिड का डायग्राम दिखा रखा है. उसका टीडीएनए पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, इसमें नई जीन डाल दी जाती है. यहाँ आपको डिसआर्म टीआरएनए
की डीएनए ऑफ द कोल्ड डिग्रेडेड प्लाज्मिड दिखा रखा है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरा बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स का, कि हमने फॉरेन डीएनए लेना है, वेक्टर डीएनए लेना है, और फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस करते हैं। डीएनए लाइकेज उन दोनों को जोड़ देती है, प्लाज्मिड में हमारा फॉरेन डीएनए आ जाता है, सेल्स को ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, इकोलाई को देन डिवाइड कराते हैं। Process step by step are 6. Isolation of genetic material DNA is the first step. Cutting the genes, तो उन्हें कट भी कराते हैं हम at specific location. Amplification of gene of interest, हम एम्पलीफाई करते हैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बहुत कॉपीज उनकी बनाते हैं यूजिंग पीसीआर। अब हम इन्हें इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के चांसेस बनने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने पीसीआर को यूज किया है। अब हम इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, obtaining the foreign gene product downstream processing. Isolation of genetic material DNA for the process of rDNA technology. DNA must be available in its pure form. हमें DNA प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को ट्रीट करना पड़ेगा स्पेसिफिक केमिकल से, ताकि सेल ब्रेक होके ओपन हो जाए, जिसके सेलुलर कंपोनेंट जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब से सोल्यूशन में आ जाएगा। इट इज डन बाय द एंजाइम। जिस बैक्टीरिया को हम ओपन कर रहे हैं ब्रेक करके, उस पर डिपेंड करेगा हम कौन सी एंजाइम यूज करेंगे। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को ओपन करेगी, सेलुलेज प्लांट सेल को ओपन करेगी, काइटिनेज फंगल सेल को ओपन करेगी। DNA is cut into the fragment with the help of restriction enzyme. DNA का टुकड़ा फ्रैगमेंट कट करा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से। फ्रैगमेंट जनरेटेड आफ्टर रेस्ट्रिक्शन इज आइसोलेटेड विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उससे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब इस डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप है। डीएई नाम के फर्स्ट लेटर से अगर हम इसका शॉर्टकट बनाएं तो फर्स्ट इज denaturation, annealing, and E is for extension, DAE is called. The denaturation is the double stranded DNA को हम ओपन करते हैं, डीनेचर करते हैं। एनीलिंग से 2 सेट ऑफ प्राइमर्स पे ऐड करते हैं एट द कॉर्नर्स, एंड एक्सटेंशन से हम एंजाइम टैग पॉलीमरेज की मदद से प्राइमर्स को ऐड करके और उनको एक्सटेंड कराते हैं, न्यू कॉपीज बनाते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। कैरी मुलेस आप डायग्राम में देख रहे हो, इन्होंने ही 1983 में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को स्टार्ट करा। इसको इन्वेंट करने वाले कैरी मुलेस थे 1983 में। इन विट्रो टेक्निक है जिसमें लैब के अंदर हम डीएनए को बिलियंस कॉपी जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं अपनी डिजायरेबल जीन को, ताकि हम होस्ट को ट्रांसफॉर्म इजीली कर पाए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डायग्राम दिखा रखा है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है थोड़े अलग फॉर्म में। टारगेट सीक्वेंस हमने लिया, उसको डीनेचर किया फर्स्ट स्टेप में, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। उसके बाद हमने डीएनए प्राइमर लगाया ग्रीन कलर का दोनों एंड्स पे, और ब्लू कलर के डीएनटीपीस दिए पर्पल कलर के, एक्सटेंशन करा दिया। तो डीनेचुरेशन हुआ 95 डिग्री पे, एनीलिंग हो रही है। नीचे टेम्परेचर दे रखे हैं कि स्टेप कौन से प्रोसेस में आता है।
denature 95 to 96 degree, annealing at the 68 degree, and elongation at the 72 degree. Now, the insertion of the recombinant DNA into the host cell or organism, insertion of recombinant DNA into the host cell is done by several methods. ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं बैक्टीरिया में, डिसार्म वेक्टर यूज कर सकते हैं, बायोलिस्टिक इन द disarm vector and biologistic can be used in plants and animal cells. Now, when the gene is there inside the host cell, we have to obtain the foreign gene product by the use of biofermenters. In this stage, for the recombinant DNA was produced, if any protein encoding gene is expressed in the heterologous host, it is called recombinant protein. Bioreactor is a large vessels in which large volumes, 100 to 1000 liters of cultures can be produced. Optimum growth condition of the microbes are present, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, etc. These are the two bioreactors which are shown. First is stirred tank bioreactor. Second is froth bioreactor. Downstream processing is the biosynthesis of many compounds such as enzymes, alcohols, antibiotics take place within the bioreactor. Products बनेंगे, enzymes, alcohol और antibiotic, hormone, जो भी हम वैक्सीन जो हम बनाना चाह रहे हैं डिजायरेबल जीन से वो बनेगी, बट उन प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करेंगे, प्योरीफाई करते हैं, फिनिश करते हैं, और इन सारे प्रोसेसेस को, सेपरेशन की, प्योरिफिकेशन और फिनिशिंग की प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं. जैसे हमने प्लेट का कल्चर स्टॉक लिया 80 डिग्री पर, फ्लास्क के अंदर उसे ग्रो करवाया, एंड देन इनोकुलम प्रिपेयर करके बायोरिएक्टर में डाला, सेंट्रिफिकेशन करवाया, फिल्ट्रेशन करवाया, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विड आइस लिक्विड एक्सट्रैक्शन करवा के प्योरिफिकेशन किया, क्रोमेटोग्राफी से हमने उसको प्योरीफाई किया, एंड देन हम वायरल इनएक्टिवेशन करके, पॉलिशिंग क्रोमेटोग्राफी से, वायरल फिल्ट्रेशन करके, डाई फिल्ट्रेशन करके, फॉर्मुलेशन प्रोटीन प्लस बफर प्लस सॉल्ट प्रोटेक्टेंट, लायोफिलाइजेशन करके, क्वालिटी कंट्रोल, पैकिंग करके बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना दिया. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यहाँ पे भी दिखा रखा है, पूरा प्रोसेस दोबारा से बता रखा है कि बैक्टीरिया से हमने वेक्टर लिया जैसे कि प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया क्योंकि हमने उसमें फॉरेन जीन भी ऐड कर दी. DNA containing the gene of interest from the different species is cleaved by an enzyme into the fragments and is added. आप यहाँ देख रहे हो थर्ड स्टेप में डिजायरेबल जीन is selected and inserted into the plasmid. फोर्थ स्टेप में प्लाज्मिड इज टेकन अप बाय द सेल्स, उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, सेल ने सोल्यूशन से इस प्लाज्मिड को ले लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, सेल विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन, उसको क्लोन किया गया, उसके एसेक्सुअल प्रोडक्शन से उसकी कॉपीज बनाई गई, क्रिएट एंड हार्वेस्ट ऑफ द जीन प्रोडक्ट, उससे जीन प्रोडक्ट हमने हार्वेस्ट किया, एंड उससे फिर हमने प्योरीफाई भी किया. Gene encoding protein for the pest resistance can be inserted in the plant also. ये बीटी कॉर्न बना सकते हैं, और अगर हम लैब में उसे आइसोलेट करें तो जीन encoding the degradative enzymes to clean up the toxic waste is inserted into the bacteria. के अंदर हम ऐसे जीन भी डाल सकते हैं जो वेस्ट का रिमूवल और वेस्ट का डिग्रेडेशन करे. अमाइलेज, सेलुलेज एंड अदर एंजाइम्स बना सकते हैं जो फैब्रिक्स में, क्लोथिंग मैन्युफैक्चर में यूज हो. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं जो हाइट बढ़ाता है. तो यहाँ पे हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट फिनिशिंग कंप्लीट हो गया. दिस वाज द लास्ट स्लाइड, और पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, सारे स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए, पीसीआर भी, प्रोसेस भी. तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस खत्म हुआ. आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने ध्यान से सुनी होगी, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको वापस देखनी है तो यू कैन अगेन ड्रैग और पीछे देख सकते हैं बटन को पॉज करके, और अपने वापस इस वीडियो को देखकर अपना स्क्रीनशॉट लेकर स्टेप्स भी देखकर कॉपी में नोट्स बना सकते हैं.
With this, I would like to end the video. And if you have liked my video, please share and subscribe with your friends who are learning through the online classes. Thank you. This was Hemlata, your teacher. Thank you. Thank you for your happy learning with me, patient listening. Thank you.